بابا بابا پکارتی 4 سالہ ننھی سی گڑیا اس کے قدموں سے لپٹی تو وہ جیسے اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ اس نے جھک کر پیار کیا، اسے گود میں اٹھا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ لیجئے، یہ باپ بیٹی یہاں ہیں۔ رافع اور ہم دونوں پورے گھر میں تلاش کر رہے تھے، اس کی بیوی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اور کیا؟ میں تو پریشان ہو گیا کہ میری ننھی سی پری کہاں ہے؟ 11 سالہ رافع نے کہا تو موسیٰ شادیمہ سا مسکرا دیا۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا، مگر جاتے جاتے اس دشمن جانہ تصویر کو نم آنکھوں سے دیکھا اور ماضی کی کئی یادیں پھر سے ڈنگ مارنے لگی۔ شاہ ولا کی وسیع و عریض لان میں آج دن کا سماں تھا۔ آج کبیر شاہ کے بیٹے موسیٰ شاہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ موسیٰ شاہ کی شادی اس کی پسند کی لڑکی نویرہ سے ہو رہی تھی۔ دونوں لندن میں پہلی بار ملے تھے اور موسیٰ شاہ کی پراعتماد اور نرم مزاج سی نویرہ سے دوستی ہوئی۔ اب دونوں عنقریب میاں بیوی بننے والے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا کہ سامنے سے حجاب کیے آتی لڑکی کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کیسے ہو موسیٰ شاہ؟ تم آخرکار 7 برس کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے ہو۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ لو میں بھی آ گئی۔ تمہارے گھر والوں سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں آؤں گی جب تم آؤ گے، اور دیکھو میں آ گئی، اور دیکھو ساتھ کچھ لائی بھی، وہ ثبوت جو تمہاری فیملی نے مجھ سے مانگا تھا۔ میرے پاس نکاح نامہ نہیں تھا، لیکن دیکھو قدرت بھی مجھ پر کتنی مہربان ہو گئی۔ اس نے مجھے پورے کا پورا تمہارے وجود کا حصہ ہی دے دیا۔ اور ہاں، DNA ویسے میں نے کروایا ہوا ہے، تم بھی اگر چاہو تو اپنی تسلی کر سکتے ہو۔ باقی اس کی شکل تم سے بہت ملتی ہے۔ میں نے تمہارا بچپن تو نہیں دیکھا، مگر جب تمہارے بیٹے کو دیکھتی ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے تم بچپن میں بالکل ایسے ہو گئے۔ اس بچے کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ ساکت و جامت اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ سب لوگ نے ثبوت مانگا تھا نا، آج سے 6 سال پہلے۔ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں؟ میں ثبوت تو نہیں دے پائی، لیکن اب بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کی بیوی ہوں یا نہیں، لیکن یہ اس کا بچہ ہے۔ اس بات کا میرے پاس ثبوت، یہ جیتا جاگتا آپ کا خون ہے۔ میرے ثبوت کو نہ بھی مانے تو خود آپ DNA کروا سکتے ہیں، یہ آپ کا خون ہے کہ نہیں، باقی آپ کی مرضی۔ اور ہاں، یہ پورا سماج آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جاننا چاہے گا کہ کبیر شاہ جو انصاف کا علمدار سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے پوتے کو اپنا نام دے گا کہ نہیں، اپنے پوتے کو انصاف دے گا کہ نہیں، یا زندگی بھر اس کا پوتا ناجائز ہی کہلائے گا۔ وہ مٹھیاں بیچتے کھڑے کبیر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ موسیٰ یکٹک اسے دیکھا گیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ برسوں پہلے وہ اس لڑکی کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، مگر پھر سے پورے قد سے اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے نویرہ کی طرف دیکھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی۔ سو گائز، تقریب ختم ہو چکی ہے۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیے۔ یہاں صرف مہندی تھی، لیکن مہندی، بارات، رخصتی سب ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ باقی رہا ولیمہ، تو آپ کو جلد ہی ولیمے کا انویٹیشن مل جائے گا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولتی کاٹدار نگاہوں سے موسیٰ شاہ کو دیکھنے لگی۔ پوری محفل میں جیسے چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ پھر سب لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ رافع، چلے اندر چل کر آپ کا کمرہ دیکھتے ہیں کہ کون سا والا آپ نے لینا ہے، اس نے اس بچے کو کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ پھر وہ اسے لیے اندر چلی گئی۔ وہ شاہ ولا کے خوبصورت لاؤنج میں اس وقت بیٹھی تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی سی دوڑنے لگی۔ اس دن کا اس نے برسوں سے انتظار کیا تھا اور آج اپنے بیٹے کا حق لینے آ چکی تھی۔ وہ ایسا کر کے بھی سخت اذیت میں تھی، کیونکہ اسے اپنے شوہر سے شدید نفرت تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ٹھوکریں کھانے نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ لاؤنج میں آ چکے تھے۔ لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ برسوں پہلے ہم نے تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالا تو تم پھر سے آ گئی؟ کبیر شاہ اندر آتے ہی دہاڑ کر بولے۔ 5 سال پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کا، لیکن جب یہاں سے گئی نا تو جاتے ہی پریگننٹ ہو گئی۔ شاید قدرت کو میرا ساتھ دینا تھا۔ میں نے دنیا کی بہت باتیں سنی۔ سب لوگوں نے کہا اس بچے کو ضائع کر دو۔ میں نے کہا نہیں، جس کا یہ بچہ ہے، برسوں کے بعد میں یہ بچہ لے کر اسی کے پاس جاؤں گی جن لوگوں نے مجھے ٹھکرایا ہے، آج تک میرے بارے میں غلط بولا ہے۔ میں انہیں اپنا کردار ثابت کروں گی۔ لیجئے، میں واپس آ چکی ہوں آپ لوگوں کے پاس آپ کے پوتے کو لے کر۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کا ہی پوتا ہے۔ میں نے DNA کروایا ہے، یہ رہی اس کی رپورٹس۔ اگر آپ کو بھی تسلی کروانی ہے تو دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کو بلا لیجئے اور اسے کہیے کہ ٹیسٹ کر لے۔ ویسے DNA ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پوتا کاربن کاپی ہے اپنے باپ کی۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہ اپنایا تو میں باہر جا کر سب کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی کہ آپ حقیقت میں کس طرح کے لوگ ہیں، جو کہ اپنے گھر کی بہو کی عزت نہیں کرتے۔ ویسے میں نے یہ شادی اپنی رضامندی سے تو نہیں کی تھی، آپ کے بیٹے نے مجھے اغوا کر کے یہ شادی کروائی تھی۔ اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی۔ اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اب اپنے بیٹے کا حق لے کر رہوں گی۔ وہ گم سم سے کھڑے موسیٰ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔
तुम्हें अगर लगता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कबूल करूँगा तो ये नामुमकिन है। तुम मेरे लिए पहले भी काबिल नफ़रत थी, तुम आज भी काबिल नफ़रत हो। और हाँ, एक माह के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से बाहर करूँगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ ही नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं ये साबित कर दूंगा। मूसा शाह ने तलमलाते हुए कहा, सही सही, चलो मुझे भी इस बात का इंतज़ार रहेगा जब तुम मुझे इस घर से बाहर करते हुए ये साबित करते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हें चंद दिनों में मना लूँगी कि तुम मुझे जानते हो। वो तलख लहजे में बोली तो मूसा गुस्से से इसे देखने लगा। तुम्हें पैसा चाहिए, जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे बेटे की ज़िंदगी से जाना होगा। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नीच ख़ानदान की कोई लड़की को अपनी बहू बना लेंगे। हमारे घर की बहू सिर्फ नवीरा बेटी ही बनेगी। तो अपनी कीमत बताओ, हम तुम्हें हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कबीर शाह ने कहा, मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे मेरे माँ बाप लौटा दीजिए जिन्होंने मेरा गम सीने से लगाकर इसे रोग बना लिया। कुछ ही दिनों में वो शर्मिंदगी और बेबसी के एहसास से दुनिया से चले गए। वापस ला सकते हैं आप मेरे वालिदैन को और इनके मान को। इज़्ज़त सिर्फ अमीर लोगों की नहीं होती, गरीब की भी वैसी ही होती है, और आपसे कहीं ज़्यादा इसलिए कीमती होती है क्योंकि आप लोग तो ना किसी की इज़्ज़त करते हैं और ना ही आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है। आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती ना तो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करता। आपके बेटे के इंतकाम ने मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं मगर इनके शोहर मुझसे मिलने तक नहीं देते। मेरे वालिदैन इस दुनिया से मुझसे नाराज़ ही चले गए। मैं तनहा दुनिया का मुकाबला करती रही। जगह जगह लोग मुझे नोचने के लिए तैयार थे। मैं सबसे लड़ती हुई एक बहुत लंबी मुसाफत तय करके यहाँ पहुँची हूँ। मेरे हिस्से में इन 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ थकन और बेबसी आई। मैं भी ये सब आपके बेटे में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो इसे कभी ना मिले। मेरा यही इंतकाम होगा। मिस्टर कबीर शाह इसकी बातों पर परेशान हो गए। इसने बेताबी से नवीरा को देखा। नवीरा, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, जब इसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ये मेरे ख़िलाफ़ तब से है। तब से ये मुझे किसी न किसी तरह नीचा दिखाती रहती है। तो बस मैंने सबक सिखाने के लिए ये किया था। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था कागजी रिश्ता था, इसे मैं एक पल में ख़त्म कर दूंगा। ये हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी। नवीरा के सामने जाते हुए बेकरारी भरे अंदाज में बोला, चलो राफ़े, आपके सोने का टाइम हो गया है ना, तो जल्दी से सो जाइए। इसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो राफ़े फरमाबरदारी से सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। फिर वो इसका हाथ थामकर मूसा शाह के कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद मूसा शाह दनदनाता हुआ कमरे में आया और इसे खूनख्वार नज़रों से देखने लगा, जो कि राफ़े को सिलाकर अब फ्रेश होने के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ने लगी थी। वो तेज़ी से इसके पीछे लपका और इसे खींचकर बाथरूम के अंदर धकेल दिया। वो खुद भी अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें कबूल कर लूँगा या फिर तुम पर जो गुजरी है इस पर अफसोस करूँगा? तुम इसी काबिल थी। तुम्हारा गुरूर और तकब्बुर तुम्हें में ले आया। तुमने ना इस दिन ये सब किया होता, ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता। इसने जबड़े दबोच कर भंकार कर बोला। वो इसे पीछे धकेलते हुए वाश बेसिन की जानिब बढ़ी और अपने चेहरे पर पानी के छींटे डालकर इत्मीनान से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। तो वो इसे खींचकर दीवार से चिपकाते हुए इसकी सांसें रोक गया। इसे पीछे धकेलने के लिए अपनी भरपूर ताकत लगा रही थी, मगर इसके सामने मुख फड़फड़ाते रह गई। तुम आज भी इतनी ही बेबस हो मेरे सामने जितनी बरसों पहले थी। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पुरएतमाद अंदाज से मुझे ज़ेर कर दोगी? तो ऐसा नामुमकिन है। और हाँ, मुझे हमेशा से सॉफ्ट नेचर की, आराम से बात करने वाली लड़कियां पसंद हैं, तुम्हारी तरह सख्त नहीं। इसे एक झटके से छोड़ता बाहर निकल गया। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और जहन आज से 7 पहले में उलझता चला गया। वो एक मतवस्त घराने से तल्लक रखती थी। बाप के पास बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। इनकी दोनों बड़ी बहनें तो अपनी पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन इसने अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने का सोचा। इसने सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया और पंजाब भर में पहली पोजीशन आई। हर बड़ा कॉलेज इसे लेने के लिए तैयार था। इसकी फ़ीस में 90% तक इसे रिलीफ मिल रहा था, लेकिन इसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से इसने अपनी बेसिक तालीम शुरू कर ली। वो अपने उस्ताज़ा की बहुत ही लाडली और बेहतरीन स्टूडेंट थी। इसने अपनी कामयाबी के झंडे यहाँ कॉलेज में गाड़ दिए। इसके अलावा वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती थी। जो काम भी वो करती वो कामयाबी इसके कदम चूमती। वो हर चीज़ में परफेक्ट थी। हिजाब में रह कर भी अपने बलबूते पर इसने बड़ी कामयाबी यहाँ हासिल की। फिर इसका BS का मुकम्मल हुआ तो इसने MBA के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ इसे हाथों हाथ लिया गया। वो स्टार्ट में ही वहाँ भी उस्ताज़ा की फेवरेट बन चुकी थी। फिर एक दिन वो लाइब्रेरी जा रही थी कि रास्ते में इसका टकराव मूसा शाह के दोस्तों से हुआ। एक ने इसे बड़ी बेबाक नज़रों से देखते हुए सीटी बजाई तो वो मुड़कर इसके पास आई। तुम्हारे घर में शायद माँ बहन नहीं है, या फिर तुम लोग अपनी माँ बहनों को भी पेश करते रहते हैं?
वो पास आकर तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए बोली तो वो लड़का तलमिला कर इसे देखने लगा। इसी वक्त वहाँ पर मूसा आ गया। क्या हो रहा है? मूसा ने हैरानी से पूछा। मूसा, ये लड़की गालियाँ निकाल रही है, मुझे माँ और बहन को गलत कह रही है। वो लड़का गुस्से से बोला। सच कह रहा है ये? अगर सच है तो अभी और इसी वक्त माफ़ी मांगो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, मूसा शाह ने कहा। मैंने इसे गाली नहीं दी, इसने सीटी बजाई। मैंने पलट कर जवाब दिया। सच बात है, लड़कियों की इज्जत शरीफ इंसान करता है, जो नहीं करता वो इनमें से होता है जिनके घर में खुद माएँ बहनें वैसी हों या फिर हों ही ना। वो तड़ाक कर बोली। हमारे घर माएँ भी हैं और बहनें भी हैं, और हमें पता है कि हमें किसका एहतराम करना है और किसका नहीं। तुम जैसी लड़कियों को हम एहतराम के काबिल समझते भी नहीं। अगर इसने सीटी बजा दी थी तो आकर उलझने की क्या ज़रूरत है? इग्नोर करके आगे गुजर जाती ना। मगर यकीनन तुम खुद ही इसकी तवज्जो खींचना चाहती थी, बाकी सब मर्दों की भी। तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मूसा शाह ने कहा। 2 टके का इंसान मिस्टर शाह वो होता है जो दूसरों की इज्जत नहीं करता। आपकी माँ ने आपको इतना भी नहीं सिखाया कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं और औरत से बात कैसे करते हैं। आप 2 टके तो क्या 1 टके के भी नहीं हैं। वो तलख लहजे में बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जैसी लड़कियों को चंद पैसों के ओस खरीद कर अपने बिस्तर की जीनत बनाते हैं हम, मूसा शाह ने तेश में कहा। अपने घर की कहानी मुझे मत सुनाओ, ये तो तुम्हारे घरों में होता होगा। हम जैसी लड़कियां तुम जैसों के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम जैसों को तो हम छूने भी ना दें। वो भी बेइंतहा गुस्से भरे अंदाज में बोली तो मूसा शाह ने इसके बाजू जोर से पकड़ा। लो, मैंने तुम्हें छू लिया, मूसा शाह ने कहा। इसने अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते हुए एक जोरदार थप्पड़ मूसा शाह के चेहरे पर दे मारा। आइंदा से ऐसी हरकत की तो मैं जूतों से मारूंगी, वो फंकार कर बोली, और फिर एक झटके से वहां से निकलती चली गई। अगले दिन हर जबान पर मूसा शाह के थप्पड़ लगने की न्यूज़ पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी और इसका मुखालिफ ग्रुप इसे देखते ही चिढ़ाने लगा। वो इन पर उलझ पड़ा। दोनों के दरमियान इस कदर लड़ाई हुई कि सब ने एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी किया और प्रिंसिपल साहब ने इन्हें ऑफिस में तलब किया और कहा, तुम्हारी शिकायत यहाँ पर आ चुकी है। MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रायना राणा ने तुम्हारे खिलाफ ये कहा है कि तुम और तुम्हारा ग्रुप आती जाती लड़कियों पर आवाज़ें कस रहे हो और आज तुमने दूसरे ग्रुप के साथ मारपीट की है। तुम्हारे वालिदैन को बुलवा कर इनसे मैं आज ही शिकायत करूंगा। और हाँ, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं इसलिए तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, वरना फ़ौरन ही सज़ा देता। ये जो चंद महीने हैं इन्हें अच्छे से गुजार लो, वरना तुम्हारे बाप की दौलत भी तुम्हारे केयर को ख़त्म होने से नहीं बचा पाएगी। प्रिंसिपल साहब ने सख्त लहजे में कहा तो वो चुपचाप वहाँ से निकल आया, लेकिन इसके दिल में अब इंतकाम की आग जल रही थी और वो इस आग में राना को जलाकर राख कर देने वाला था। क्या बात है डैड, तुम कुछ करोगे नहीं? इस लड़की ने हमें बेइज्जत किया। तुम चुप हो, इसकी दोस्त ने तिलमिलाते हुए कहा। बस 4 महीने के लिए चुप रहो, इसके बाद इस लड़की को ऐसी सज़ा दूंगा कि ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, वो साद लहजे में बोला। फिर यूं ही 4 महीने पुरसकून गुजर गए। दोनों एक दूसरे को देखकर अनजान बनकर गुजर जाते थे, मगर रायना काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी क्योंकि इसका रवैया हर लड़के के साथ काफ़ी ज़्यादा लिया दिया सा रहता था। वो बहुत कम किसी से बात करती थी और लड़कियां भी इसकी दोस्त ना होने के बराबर थी, और जो लड़की बॉयफ्रेंड रखती थी इसके तो आसपास भी रहना पसंद नहीं करती थी। यही चीज़ मूसा शाह को बहुत बुरी लगती थी। जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी, इसी दिन मूसा शाह ने अपने दोस्तों के साथ रायना को किडनैप करने का फैसला किया। फिर शाम के वक्त जब पार्टी ख़त्म हुई तो रायना घर जाने के लिए निकल रही थी कि मूसा शाह ने इसे बीच रास्ते से उठा लिया, इसे अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले गया। वो जितना भी बुरा था, लेकिन आज तक इसने कभी किसी लड़की के साथ नाजायज़ तल्कात नहीं रखे थे। यहाँ भी इसने रायना के साथ निकाह करके इसे टॉर्चर करने का फैसला किया। रायना को जब होश आया तो वो खुद को एक कमरे में कैद पाकर और हवास बहता हो गई और चिल्ला चिल्ला कर दरवाज़ा पीटने लगी, मगर दूसरी तरफ से सन्नाटा था और खिड़की से इसके अंधेरे होने का एहसास हो रहा था। इसका दिल ये सोच सोच कर दिल हो रहा था कि इसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। वो घुटनों में सर्दी सिसकियाँ भर भर कर रो रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो इसने झटके से सर उठाकर देखा तो उस्ताद ये मुस्कुराहट से जाए अंदर दाखिल होते मूसा शाह को देखकर इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने मुझे किडनैप किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? इसका गिरेबान पकड़े है जानी अंदाज में चिल्ला कर बोलने लगी। मूसा शाह ने इसे एक झटके से पीछे करते हुए जोर से धक्का दिया और वो बेड पर गिर गई। अभी यहाँ मेरा और तुम्हारा निकाह होगा, कुछ देर बाद निकाह होगा तो फिर इसके बाद मेरी तुम्हारी सुहाग रात होगी, बस फिर तुम जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ दूंगा, मूसा शाह ने कहा तो इसने हतमी अंदाज में से देखा। मैं हरगिज़ तुमसे निकाह नहीं करूँगी, तुमसे निकाह करने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूँ। वो चिल्ला कर बोली, नहीं मेरी जान तुम ऐसे नहीं जान लोगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम पल पल मरोगी। मूसा शाह ने इसके रुखसार को छूते हुए बेबाक लहजे में कहा, प्लीज़ ये जुल्म मत करना, मेरे माँ बाप घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो।
वो अब इसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। वाह क्या बात है, तुम्हारा गरूर तनतना तो एक पल में मलिया मेट हो गया। खाक में मिल गई तुम्हारी वो बातें, वो अंदाज जिसकी वजह से तुम पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे इल्तिजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे अंदर इतना गरूर कूट कूट कर भर दिया है, इसे मैं तोड़ूंगा। तुम्हारे माँ बाप इससे टूटेंगे। वाह कमाल है, एक तीर से दो शिकार। आइंदा से तुम जैसी लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों को हम जैसों के सामने नहीं खड़ा करेंगे। बहुत फ़ख्र से स्टेन अपने दोस्त को कह रही थी ना कि तुम्हारे माँ बाप ने ये तुम्हारी तरबियत की है कि किसी मर्द से नरमी से बात ना करो। लेकिन अब तुम्हारे माँ बाप पछताएंगे और सोचेंगे कि अगर बेटी को सही सबक दिया होता तो आज इसके साथ ये ना होता। तुमने उस दिन जो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था ना, इसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। इस थप्पड़ का जवाब ना देकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो थप्पड़ का बदले में तुम्हारी रूह को इस कदर जख्म कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर रोती रहोगी। इसने इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। उन्होंने पूरे ख़ानदान की मुखालफत की और बड़े एतमाद से मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैं घर ना पहुंची तो पूरा ख़ानदान इन्हें बातें सुनाएगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, इसने इसके पाँव पकड़ते हुए बोली। तुम्हारे माँ बाप का गरूर तो तोड़ना बनता ही है। क्यों भेजा उन्होंने तुम जैसी लड़की को? नहीं भेजना था। अरे गरीब हो, अपने घर में रहो, हम अमीरजादों के साथ मुकाबला करोगी? बहुत एतमाद है ना तुम्हारे माँ बाप को तुम पर। अब वही माँ बाप किसी के सामने सर तक नहीं उठा पाएंगे। वो इसका बाजू झटक कर बोला तो वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम सिर्फ मेरे बिस्तर की जीनत बनो तो निकाह कर लो, वरना बाहर जितने मेरे दोस्त बैठे हैं ना, वो सब के सब भरे बैठे हैं। ये ना हो कि सब तुमसे फ़ायदा उठाएं। अभी तुम्हें चुनना है, तुम्हें निकाह करके मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना है या फिर सब के साथ। वो सिगरेट सुलगा कर लबों से लगाते हुए बोला तो इसके आंसू ठर ठर गए और खौफ से रंगज़द हो गया। फिर इसने रोते हुए निकाह के लिए इकरार कर लिया। निकाह के बाद इसे रात भर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। सुबह होते ही वो इसे घर छोड़ने की मिन्नतें करने लगी, मगर वो मुकर गया। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सुबह जाने दोगे, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। वो तड़प तड़प कर रो दी, मगर इस कदर शफाक था कि इसके रोने पर सुकून महसूस करता था। फिर अगले 7 दिन तक वो इसे इस कदर तोड़ चुका था कि 8वें दिन जब इसने कहा कि वो इसे आज इसके घर छोड़ देगा तो इसके अंदर कोई एहसास नहीं जागा। फिर वो इसे इसके घर के सामने उतार कर चला गया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो इसकी माँ की मैयत पड़ी थी और इसे देखते ही चेमगोइयाँ होने लगी। वो तड़प तड़प कर रो दी। इसने अपनी बड़ी बहन से अपने बाबा के बारे में पूछा तो इसने बताया कि तुम्हारे गायब हो जाने के फ़ौरन बाद ही तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आ गया और वह दुनिया से चले गए और आज माँ भी चली गई। फिर इसके बहनोइयों ने इसकी बहनों को बात करने से मना कर दिया। किराएदार ने घर खाली करवा लिया। वो घर से निकलकर शाहविला पहुंची तो इसने जब सब बताया कि मूसा शाह की बीवी है तो कबीर शाह और इस उज़्मा शाह ने तंज़िया अंदाज में देखा, हमारे बेटे की बीवी और हमें मालूम नहीं। लड़की तुम जैसी ही लड़कियां मेरे बेटे के हुस्न और इसकी दौलत के पीछे आती रहती हैं, लेकिन आज तक किसी ने बीवी होने का दावा नहीं किया था। वो भी हमने देख लिया। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना धक्के मार कर निकाल देंगे, उज़्मा शाह ने कहा। फिर इसकी मिन्नत समाजत की बावजूद इसे वहाँ से निकाल दिया गया। हर जगह दरिंदे नोचने को थे, मगर वो खुद को बचाती एक दारुल अमान में चली गई। वहाँ जाकर इसे पता चला कि वो 3 माह की हामला है। वो दिन भर वहाँ काम करती, फिर खुद को संभालती। दारुल अमान की डिस्पेंसरी में ही इसने राफिया को जन्म दिया। जब राफिया 2 साल का हुआ तो इसने एक फैक्ट्री में जॉब कर ली। वो हर दिन मूसा शाह के आने की खबर मालूम करने जाती। फिर जब राफिया 6 साल का हुआ तो इसी दिन इसे मूसा शाह के आने की खबर मिली। फिर साथ ही शाहविला के इकलौते चिराग की शादी के चर्चे होने लगे। फिर इसने ऐन मेहंदी के दिन यहाँ आ कर इसकी शादी को न सिर्फ रुकवाया बल्कि इसके पूरे ख़ानदान की तमाशा बन गया। वो माजी से हाल में वापस आई तो इसने अपनी नाक को छू कर देखा तो इसकी नाक से खून निकल रहा था। इसने वाश बेसिन के आगे खड़े होकर अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल आई। मूसा शाह कमरे से जा चुका था। वो राफे सो रहा था। वो चुपचाप आकर राफे के साथ लेट गई। वो पूरी रात स्टडी रूम में रहा और नवीरा को फ़ोन कर रहा था, मगर नवीरा इसका फ़ोन तक नहीं उठा रही थी। वो बेचैन से अपने बालों में उंगलियां फंसाए बैठा था कि उज़्मा शाह ने इसके पास आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं नवीरा से बात करूँगी। तुम्हारी शादी सिर्फ नवीरा से होगी। और रही ये लड़की, फ़िक्र मत करो, मैं इसका यहाँ से जल्द जाने का इंतज़ाम करूँगी। लेकिन एक बात है, वो बेटा वाकई तुम्हारा ही है, क्योंकि बिल्कुल ही तुम्हारी कापी है। मैं जानती हूँ कि तुमने गलत किया है, लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने ये कब किया और क्यों किया, ताकि वक़्त आने पर हम इस बात को बदल सकें, वरना हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे डैड इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मैंने इन्हें समझा दिया कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन वो बस पागल हुए पड़े हैं। कहते हैं कि गलती हुई थी तो बाहर तक रहती, घर में क्यों आई।
करवाई, बच्चा भी पैदा कर दिया। ये बात सच भी है कि तुमने गलती कर दी है बच्चा, अब इसे तो अपनाना ही होगा क्योंकि वो हमारा खून है, लेकिन ये लड़की हमारे ख़ानदान के किसी तरह भी काबिल नहीं है। उज़्मा शाह ने कहा तो इसने सर इस बात में हिलाते हाँ में हाँ मिलाई। जी मामा, और ये लड़की में बहुत गुरूर था जो आज भी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैंने जो इसे सज़ा दी है इसके बावजूद वो इतने बरसों बाद फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। ये लड़की वाकई हमारे घर के काबिल नहीं है, मैं इसे यहाँ से निकाल कर ही दम लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग नवीरा को समझाएं कि मैं इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने इसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की और ना ही कभी करूँगा। बस आप एक बार इसे कर घर बुलवा लीजिए, मैं इसे सब समझा दूंगा, मूसा शाह ने कहा। तो उज़्मा शाह ने सर हस्बात में हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन उज़्मा के बुलाने पर नवीरा घर आ गई। जब इसने ये सारी बातें बताई तो इसने हैरत से इसे देखा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने किसी लड़की के साथ ये सब किया क्योंकि इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। शेम ऑन यू, तुम्हें लगता है कि ये बात सुनने के बाद मैं तुम्हें अप्रिशिएट करते हुए माफ़ कर दूंगी? नेवर। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत मालूम हो गई। अरे तुम औरत की इज्जत नहीं करना जानते, तुम्हारे किए गए गुनाह की वजह से कल मेरी औलाद को भुगतना पड़ा। क्या तुमने मुकाफ़ात अमल नहीं सुना? मैंने सुना है कि आज तुमने किसी की बेटी के साथ गलत किया, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी गलत होगा। वो मेरी बेटी भी होगी, मैं तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं भुगत सकती। नवीरा ने सद लहजे में कहा, वाकई तुमने तो लड़की हीरा ही चुनी थी, मगर अच्छा हुआ इसे मालूम हो गया कि तुम इसके काबिल नहीं। बस वो बच गई तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से। वैसे अगर चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में इसका दिल साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मांगोगे माफ़ी? जैसे मैं तुम्हारे कदमों में गड़गड़ाती रही वैसे तुम भी मांग लो माफ़ी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और नवीरा से जाकर कह दूंगी कि वो तुम्हें माफ़ करके अपना ले। वो सोफ़े पर बैठते हुए सीने पर बाजू बांधे इत्मीनान भरे लहजे में बोली। तो मूसा शाह और उज़्मा शाह ने ज़ोर से लब भींच लिए। तुम जैसी घटिया औरत से माफ़ी मांगने से बेहतर है मैं नवीरा के बगैर जीना पसंद करूँगा, वो सद लहजे में बोला और फिर वहाँ से निकलता चला गया। रात को जब वो घर लौटा तो कमरे में आया तो राफे वीडियो गेम खेल रहा था। इसके पास जाकर बैठा तो वो जल्दी से इसके गले लग गया। मम्मा तो कहती थी जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे ढेरों खिलौने दिलाएंगे, मगर आपने तो मुझसे बात ही नहीं की। इसने इसके गले लगते हुए शिकवा किया तो वो बेख्तियार रायना को देखने लगा जो कि मोबाइल में मसरूफ़ थी। अच्छा, तो आपकी मामा कहती थी कि मैं आपको अच्छे अच्छे खिलौने दिलाऊंगा, इसके अलावा और क्या कहती थी मामा? मतलब मेरे बारे में क्या कहती थी? मैं कहाँ पर हूँ और क्या करता हूँ? आपने कभी मामा से पूछा नहीं? वो रायना की तरफ देखकर बोला। तो रायना ने मोबाइल से निगाह हटाकर इसे देखा। नहीं, क्योंकि मेरे सवाल से पहले ही मुझे बता दिया था मामा ने कि आप हाई स्टडी के लिए बहुत दूर गए हैं। जैसे ही आप वापस आएंगे हम लोग आपके पास चले जाएंगे। फिर आपके बारे में मामा ने बताया कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी थी इसलिए आप हमसे दूर हैं। वो जल्दी से बोला, चलो अब ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फिर आपको अच्छे अच्छे टॉयज़ दिलाऊंगा। इसने इसकी सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए कहा। यहू, चले उठे मामा। वो रायना के पास जाकर बोला, राफे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप ऐसा करो आप अपने डेट के साथ अकेले जाए, एंजॉय करें बहुत सारा। रायना ने मुस्कुरा कर कहा। तो वह मूसा ने नागवारी से इसे देखा। क्या हो जाता अगर तुम साथ चल पड़ती? बच्चे का दिल रह जाता। राफे के बाहर जाने के बाद राफे लहजे में बोला, आपको मेरे बेटे के दिल की इतनी फिक्र कब से होने लगी? खैर अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी ना होने वाली बीवी मिस नवीरा को बुला लीजिएगा। इसने फिर से इसके जख्मों को छेड़ दिया था। वो तलमलाते हुए इसे देखने लगा और फिर गुस्से से उठकर बाहर निकल गया। फिर वो राफे को लेकर शॉपिंग मॉल में घूमा तो इसकी हर मनपसंद चीज़ दिलाई। फिर घर वापस आए तो इसे अपने रूम के साथ वाला रूम खुलवाया। ये अभी तो थोड़ा सादा है, लेकिन मेरा बेटा जैसे कहेगा मैं इसको वैसा ही करवा दूंगा। मूसा इसके रुखसार को थपथपा कर बोला तो इसका चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा था। थैंक यू सो मच। पता है मैं मामा से कहता था कि राफे बड़ा हो चुका है, इसे अलग कमरा चाहिए, तो बस आज मुझे अपना कमरा मिल गया। वो मूसा के साथ लिपट कर बोला। फिर राफे इसके साथ कमरे में आया तो रायना सोफे पर गुमसुम बैठी थी। मामा, इसे पुकारता इसकी तरफ बढ़ा और इसके गले लग गया। फिर वो इसे सब कुछ पुरजोश अंदाज में बता रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी। अब आप ऐसा करो, जाकर आराम करो, फिर कल सुबह अपने डेट के साथ जाकर अपने स्कूल में एडमिशन लेना है, क्योंकि अब पहले वाले स्कूल में नहीं जाएंगे। जो डेट को पसंद होगा अब आप वहाँ पर जाएंगे। रायना ने कहा तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। लेकिन मामा वहाँ भी तो अच्छा पढ़ाते हैं ना, मैं अभी वहीं पढ़ सकता हूँ क्या? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ भी, मैं अपने दोस्तों के बगैर कैसे रहूँगा? वो अफसदा लहजे में बोला। तो क्या हुआ, नई जगह है, दोस्ती हो जाएगी। आपको किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए, वैसे भी बहुत सारे दोस्त रखना बुरी आदत होती है। कम दोस्त बनाना चाहिए और अच्छे। ज़्यादा दोस्त हों तो इनमें ख़राब भी होते हैं और ख़राब दोस्तों की वजह से आप बर्बाद भी हो सकते हैं।
आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं और देख कर दोस्ती किया करें। पता है, अच्छा दोस्त अतर की तरह होता है, इसकी महक से सब लोग महक उठते हैं। बुरा दोस्त धुएं वाली भट्टी की तरह होता है और इसके धुएं की बू की वजह से आपके अंदर भी बू समा सकती है। आप चाहे वो गलत काम ना भी करें तो बुरे दोस्तों की बुरी आदतों की वजह से आप भी बदनाम होते हैं। इसलिए हमेशा मेरी बात याद रखेंगे कि आपने दोस्त कम बनाना है और बहुत सोच कर बनाना है। इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। फिर मूसा शाह ने इसे पहली बार गौर से देखा। इसे वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज लगी। इसके रंग में जर्दियाँ सी घुली हुई थी और आंखों के गेज से हल्के थे, जबकि वो बड़ी फ्रेश और रोशन चेहरे वाली हुआ करती थी। मगर एक चीज़ इसे बहुत अजीब लगी, वो इससे बात भी नहीं करती थी, मगर इसने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की थी। सबसे बढ़कर इसने राफे के अंदर इसकी बड़ी उम्दा तस्वीर बनाई थी। वो न जाने क्या चाहती थी। अगर वो अपना इंतकाम लेने आई थी तो वो इंतकाम क्यों नहीं ले रही थी? इसे ये बात खटक रही थी। इसे तो लगा था कि वो इसके बेटे को इससे छीन लेगी, इसके दिल में जहर बोएगी। फिर वो राफे को अपने कंधे के साथ लगाए इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कोई मोरल स्टोरी सुना रही थी। वो चुपचाप इसे देखे जा रहा था। न जाने ये लड़की इसे हमेशा क्यों हैरान कर देती थी। कुछ देर गुजरी तो राफे उठकर अपने कमरे में चला गया। वो भी सोने के लिए बेड की जानिब बढ़ी। आप यहाँ सोएंगे? इसने हैरानी से कहा। हाँ तो और क्या, इसने कहा और हाथ डालकर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। कितने अरमान से जाए थे मैंने, शादी हो रही थी मेरी, आज के दिन मेरी दुल्हन मेरे साथ होनी थी, मेरी सुहाग रात थी, मगर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बीवी तो हो ना तुम भी, मेरी तो तुम्हारे साथ ही सुहाग रात मना लूँगा। वैसे भी वो 7 रातें जो मनाई थी, कसम से क्या ही बताऊँ, याद कर रहा हूँ ना, बहुत अजीब सरूर तारी हो रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारी कुर्बत में बड़ा सुकून पाया मैंने। मूसा ने इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके नीचे नाजुक जख्म देते हुए बोला। तो इसने सिसकारी भरी। ये सिसकारी सुनकर मुझे राहत मिलती थी। मुझे अब याद आया, तुम्हें छूता था तो तुम रोया करती थी। तुम्हारा वो टूटा गरूर देखकर मुझे राहत मिलती थी, और आज भी तुमने ये सिसकारी भरा तो मुझे बहुत सुरूर आया। दिल चाह रहा है कि एक बार और छू कर तुम्हें देखूं। कहते हुए इस पर झुक गया और इस पर शिद्दतें बरसाने लगा। वो इसे बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। अपना हक लेने के बाद वो पुरसकून होकर सो गया। वो आहिस्ता से उठी और अपने मुर्दा वजूद को घसीटते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गई। दिल बहुत घबरा रहा था। फिर वो मुंह पर हाथ रखे वाश बेसन पर झुकी और पसीने में शराबूर हो गई थी। मुंह से खून का फवारा निकल गया। सर में दर्द की ठीस उठ रही थी। वो बेदम सा होकर बैठ गई। फिर वह मुश्किल उठी और शावर के नीचे खड़ी हो गई। फ्रेश होने के बाद इसने अपने बालों को तौलिए में लपेटा और बाहर निकल आई। चादर ओढ़कर इसने तहज्जुद अदा की। सजदे में गिरते हुए राफे की खुशियों भरी लंबी उम्र की दुआएं करने लगी। फिर वो फजर की अजान होने तक जाए नमाज पर ही बैठी रही। नमाज पढ़ने के बाद वह उठकर बाहर आई और लान में चहलकदमी करने लगी। वो चहलकदमी कर रही थी कि कुछ देर के बाद मूसा शाह भी बाहर आ गए। झूले में बैठकर फुर्सत से इसे देखने लगा, जो नमाज के स्टाइल में दुपट्टा बांधे बहुत पाकीज़ा लग रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपने माँ बाप से बिछना पड़ा। मैं बहुत गुस्से में था, बस इसीलिए ऐसा किया। क्या करता, बचपन से ही इसे अपनी हर जिद को पूरा किया है। तो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी थी, मैंने सोच लिया कि जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मूसा शाह ने कहा तो वो तलख मुस्कुराहट से इसे देखने लगी। रियली मिस्टर शाह, अब आपके अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि जो चले गए हैं वो मेरे माँ बाप थे और अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैंने तो अपने बाबा का आखिरी दीदार भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो आपकी होश मिटाने का काम कर रही थी ना। और इधर मेरे बाप को मेरे बगैर ही दफना दिया गया। मेरी माँ जब मैं घर पहुंची थी तो इसकी मीयत पड़ी थी। मेरे ऊपर क़यामत पर क़यामत टूटी। मगर देखें, मैं आज भी ज़िंदा हूँ। हालांकि मुझे ऐसी लड़कियों को इसी वक्त मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने अभी शायद इम्तिहान में मज़ीद मुब्तला होना था। मुझे दुनिया के मज़ीद रंग देखने थे। मेरे अपनों ने, मेरी बहनों तक ने मुझे छोड़ दिया। बरसों से धक्के खा रही हूँ। अपने बेटे को ये धक्के नहीं देना चाहती थी, इसीलिए इसे लेकर आपके पास आ गई, ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सके। घुट घुट कर जीने का क्या फ़ायदा। वो इसके बराबर झूले में बैठते हुए बोली। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो जाएगा, शर्मिंदा से लहजे में बोला। गरीब के पास सबसे बड़ी दौलत इसकी इज्जत होती है। मेरे बाबा का मान भी थी मैं और इज्जत भी। जब दोनों खो जाएं तो इंसान मर जाता है। मेरे वालिद ने पूरे ख़ानदान की मुखालफत मोल लेकर मुझे पढ़ाने के लिए भेजा था। पूरा ख़ानदान कहता था मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, ये ना हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा मान तोड़ दे, तुम्हारी इज्जत को ख़राब कर दे। ऐसा ही हुआ। मैंने न सिर्फ इनका मान तोड़ा बल्कि इज्जत को भी हाथ में मिला दिया। तो वो जिंदा रह कर क्या करते, बस चले गए इस दुनिया से। अच्छा ही है चले गए थे, वरना दुनिया ने इन्हें मजीद ताने मार मार कर इनके दिल को छेदना था। बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरी तरह डिप्रेशन की ज़िंदगी नहीं जी रहे, वो अक्ताई अंदाज में बोली। तो मूसा शाह ने बेदर्दी से इसे अपने लबों को चबाया। फिर इससे पहले कि वो कोई बात करता इसका फ़ोन बजने लगा। इसने देखा तो नवीरा का फ़ोन आ रहा था। इसने कॉल पिक की। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मज़ीद कुछ कहना है। प्लीज़ तुम अपनी बीवी को लेकर आज मुझे मिलने आ सकते हो किसी होटल में, नवीरा ने कहा। इसने बेख्तियार पास बैठी रायना को
देखा, मैं पूछ कर बताता हूँ, मैसेज करता हूँ तुम्हें, इसने कहा और फिर कॉल काट दी। नवीरा का फ़ोन था, कह रही थी कि शादी के लिए तैयार हूँ लेकिन कुछ कहना है और तुमसे, तो वो कह रही है कि मैं तुम्हें लेकर किसी होटल में आऊँ, वहाँ बैठकर बात होगी। तुम चलोगी मेरे साथ? मूसा शाह ने कहा। हाँ चलूँगी, कब तक जाना है? इसने बेतासर अंदाज में कहा। तो मूसा इसे देख कर रह गया। क्या तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा कि मैं शादी करूँगा? तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही इस बात की? मूसा ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा। मतलब आप ये चाहते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो, लेकिन क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो? वैसे भी मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, आप जिस मर्ज़ी लड़की से शादी कीजिए, मेरा क्या? मैं ना आपसे मोहब्बत करती हूँ ना कभी करूँगी, बल्कि मैं तो इस दुनिया में अगर किसी से नफ़रत करती हूँ तो वो आप हैं। सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे आपसे है, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। बाकी मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने हाँ बोली। इसका कोई मतलब, गलत मतलब मत लीजिएगा, वो सपाट लहजे में बोली। तो मूसा ने बेदर्दी से अपने लबों को कुचला। पता नहीं तुम्हारा मिजाज ऐसा क्यों है? रात को तुम मेरे साथ थी, मेरे बाजुओं में थी, तुमने ज़रा भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा शायद तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, लेकिन अब तुम्हारा मिजाज इस कदर साध है कि मैं हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे पास कैसे आने देती हो? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? वो तलख लहजे में बोला। मेरा मकसद कुछ भी नहीं है, मैं क्यों आपके पास आई, क्यों आने दिया मुझे नहीं मालूम, बस मैं किसी को नहीं रोकती इसका हक लेने से। आपका हक था मुझ पर, सो आपने ले लिया, मैं क्यों आपको रोकती, गुनाह करती? क्या मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत गुनाह हैं? अगर एक और का इजाफा हो गया तो अल्लाह को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? इसने सपाट लहजे में बोला। तो मूसा ने लब भींच ली। यार तुम किस तरह की लड़की हो? मतलब तुम्हारे अंदर अजीब सा कुछ है, तुम लड़की लगती नहीं हो। मुझे पता है लड़कियां मुझे देख कर तड़पती थी, मगर तुम जब मुझे देखती थी तो ऐसे देखती थी जैसे पता नहीं अपनी निकाह से बस मिटा दोगी। तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत बुरा लगता था, आज भी तुम ऐसा ही एटीट्यूड बनाए हुए हो। क्या है ये? क्यों है इतना सर तुम्हारा अंदाज? इस बार चिढ़कर बोला। क्या चाहते हैं आप? समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं आपके पास आती हूँ तो भी आपको मसला, आपसे एटीट्यूड दिखाती हूँ आपको तब भी मसला है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं होने लगी? वो इसके बार अपनी स्याह आंखें इसकी आंखों में डालती हुई बोली। तो मूसा शाह का दिल जैसे इन आंखों में डूब कर उभरा। मुझे नहीं पता कि ये मोहब्बत है या क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारी कुर्बत कल रात से अजीब सुकून में मुब्तला कर रही है। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें खुद से दूर करूं, बल्कि दिल चाहता है कि तुम्हारे करीब रहूं, तुम्हें बार बार छूऊं। ऐसा क्यों है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं मोहब्बत नवीरा से करता हूँ, ये बात कन्फर्म है। वो इसे छोड़ते हुए संजीदगी भरे लहजे में बोला। तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम मुझे चिढ़ा रही हो? वो तब कर बोला। सॉरी, मेरी हंसी निकल गई। क्या करूँ? जब आप कहते हैं ना मुझे नवीरा से मोहब्बत है और फिर मेरी कुर्बत को भी तड़पते हैं, मुझे समझ नहीं आता आप मर्द इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं। वैसे शायद इसीलिए अल्लाह ने आपके लिए अचार का ऑप्शन रखा है, क्योंकि आपको बेवकत चार से मोहब्बत हो सकती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली। तो मूसा ऐसे देख कर रह गया। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता इकट्ठे करते हैं, नवीरा को नाश्ता का के देता हूँ। मूसा ने सर झटक कर कहा। तो वो सर इस बात में हिलाती उठ खड़ी हुई। फिर कुछ देर के बाद वो तैयार होकर इसके साथ एक रेस्टोरेंट में चली आई। नवीरा, तुमने मुझसे बोला कि तुम शादी के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें मजीद कोई बात करनी है हम दोनों से। क्या बात करनी थी? मूसा ने पूछा। हाँ, मुझे दरअसल ये कहना था कि हम राफे को एक दूसरे के करीब कर लेंगे, लेकिन क्या ये हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी? नवीरा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊँगी, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि तुम लोग मेरे राफे का बहुत ख्याल रखो और बेफिक्र रहो। मैं कभी तुम लोगों से छीनने भी नहीं आऊँगी। वो सपाट लहजे में बोली। तो मूसा ने लब भींच कर इसे देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुमसे ये सब कह रही हूँ, लेकिन एक औरत हो तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ किसी दूसरी औरत को, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूँ, इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब्रॉड में बहुत सारे लड़के हैं, मैं तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ, इसने कहा। तो मूसा ने बेचैनी से पहलू बदला। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए इतना सोच रही हो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को शामिल करना चाहूँगी तो खुद ही कर लूँगी, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसते हुए बोली। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मौजूद तो नहीं है? हो सकता है इसी वजह से तुम राफे को हमें देना चाहती हो, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी के पहले शोहर से बच्चे को बर्दाश्त नहीं करते, नवीरा ने कहा। शायद हो सकता है, शायद यही वजह हो, इसने ख़ास अंदाज में कहा। तो मूसा ने ज़ोर से मुट्ठियाँ बींच ली। रेली, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, राफे का अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगी, इसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करो। तुम अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। तुमने वाकई ज़िंदगी में बहुत दुख सहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, नवीरा ने कहा। तो वो ज़ाहिर लब आमीन बोलती लस्सी पीने लगी। कुछ देर के बाद वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आए। मूसा, ऐसा करो तुम मुझे घर छोड़ना और आयना को यहाँ पर किसी कैब वगैरह में बैठा दो, नवीरा ने कहा। मूसा ने बेचैनी से इसे देखा। अच्छा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों जाइए, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर घर पहुँचती हूँ, इसने अपनी मखसूस हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। फिर खुद ही टैक्सी को रोक कर इसमें बैठ कर चली गई, मगर एकदम से
रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई। वो टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल जाने का कहती सीट की बैग से टैग लगा गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो इसकी दोस्त वहाँ की नर्स थी। वो जल्दी से इसे लेकर एक कमरे में आ गई। वो बेड पर लेटी अपने दर्द करते सर को दबाने लगी। कुछ देर के बाद डॉक्टर तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ तुम्हें? तुम आराम नहीं कर सकती? देखो अपनी हालत, रंग किस तरह जर्द पड़ा है। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अपने आप से प्यार करो? डॉक्टर ने इसे डांटते हुए कहा तो इसकी डांट पर हल्का सा मुस्कुरा दी। देख रही हैं आप सिस्टर कैसे मुस्कुरा रही है, मजाक उड़ा रही है ये मेरा। वो डॉक्टर इस पर तप कर बोला तो इस बात पर वो खिलखिला कर हंसी। सच में डॉक्टर साहब आप कुछ ज़्यादा ही तप रहे हैं। वैसे आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? इसने हंसते हुए कहा तो डॉक्टर साहब ने इसे संजीदगा सी निगाह से देखा। इसने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिया। अब की बार डॉक्टर साहब हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर कुछ चेकअप के बाद डॉक्टर साहब ने इसके लिए दवाई मंगवाई। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, डॉक्टर साहब ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। फिर डॉक्टर साहब के साथ वो घर की जानब निकल आई। वो रास्ते में इससे हल्के फुल्के सवाल करते रहे जिसका वो इत्मीनान से जवाब दे रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि राफे को प्यार दे पाएगी? वो तुम्हारा शोहर कबूल कर पाएगा? डॉक्टर साहब ने अचानक से पूछा। लग रहा है कि कबूल कर चुके हैं वो तो मुझे कबूल करने को भी तैयार है। अच्छा, इंतकाम में मोहब्बत है ना? पता है किसी से इंतकाम लेना हो तो ऐसा ही लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इसके दिल में मोहब्बत पैदा करके इसे छोड़ देना चाहिए। इस मोहब्बत के इंतकाम में बड़ा मज़ा है। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली तो डॉक्टर साहब ने इसे बगौर देखा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम हर किसी के साथ घुल मिल जाती हो। काश मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता चल जाता तो आज मैं तुम्हें बचा पाता। बोलते बोलते डॉक्टर साहब का लहजा बिगड़ गया। इट्स ओके डॉक्टर साहब, वैसे भी ये कुदरत का फैसला है। हम कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते। मैं बहुत थक गई थी दुनिया से। अब सोचती हूँ ना कि मैं भी कुछ सुकून पा लूँगी तो मेरा दिल मुतमईन सा हो जाता है। कभी कभी दिल को धड़का सा लगता है, वो कैसे रहेगा मेरा बेटा मेरे बिना। हाँ वाकई, इसे तुम कुछ पल के लिए नज़र ना आओ, वो पागल सा होने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसे खुद से दूर करूँ लेकिन मेरा दिल खुद से इसे दूर करने को नहीं चाहता। पता नहीं ये औलाद की मोहब्बत ऐसी क्यों होती है। चाहे इस औलाद का बाप हमारे लिए काबिल नफ़रत हो तब भी हम इसकी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने कशिश ही ऐसी रख दी है। वो नम आंखों से बोली तो डॉक्टर साहब ने इसे देखकर लब भींच लिए। फिर गाड़ी शाविला के बाहर खड़ी हुई तो इसके खुदा हाफिज़ बोलते हुए गाड़ी से निकल आई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो आगे बेचैनी से इधर उधर टहलते मूसा शाह को देखकर ठठक गई। वो तेज़ी से इसके पास आया। तुम तो टैक्सी में बैठी थी ना, फिर गाड़ी में कैसे आई? किसके साथ आई हो? इसने पास आकर बैठ कर बोला। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने आपसे पूछा कभी कि आप क्या करते हैं क्या नहीं? वैसे भी जब आप अलग होने वाले हैं किसी से भी मिलो, आपको इससे क्या? वो अपना बाजू एक झटके से छुड़वाते हुए बोली। मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गई। वो भी तेज़ी से इसके पीछे रखा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता इसे पकड़कर दीवार से लगा गया। इसकी पीठ शावर से लगी तो साथ ही पानी इन पर बरसने लगा। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे इसका जवाब दो। कौन था वो शख्स? किसके साथ आई हो तुम? इसने चीख कर पूछा। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। और आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? हमारा रिश्ता ही क्या है? इसने सीने पर हाथ मारकर गुस्से से बोली। मूसा ने इसके हाथ जकड़ते इसकी कमर के साथ लगाए, इसके लबों को अपने दस्तस में ले गया। खुद को इसे छुड़वाने के लिए वो मुज़ाहमत करती रही मगर वो इसे बहुत ज़ोर से जकड़े हुए था। फिर वो इसे छोड़ता हुआ पीछे हुआ तो इसके सीने पर मुक्कों की बारिश करने लगी। फिर वो इसके गर्दन और सीने पर काटने लगी। वो आंखें बंद करके मदहोश खड़ा था। फिर वो इसके सीने पर सर रखे तड़प तड़प कर रो रही थी। वो इसे नरमी से गले लगाए हुए था। फिर इसके दिल का जब बोझ हल्का हुआ तो इससे अलग होकर पीछे को दीवार से अलग कर खड़ी हो गई। वैसे जो तुमने आज मुझे ये जो ज़ख्म दिया है ना, बहुत फरहत बख्श है। इसके करीब होकर इसकी थोड़ी से थाम कर संजीदा लहजे में बोला तो इसने अपनी सुरख होती आंखों से देखा। नवीरा से मोहब्बत है तो मुझसे क्यों सुरूर लेते हैं? मुझसे क्यों सुकून होता है? ये आपको सुकून इसलिए है क्योंकि आप मुझे टूटा बिखरा देखना पसंद करते हैं। हमेशा से यही तो होता है। जब मैं आपके आगे डट कर खड़ी होती हूँ तो मुझे तोड़ने के लिए इसी तरह की हरकत करते हैं, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। अब बस बहुत हो गया, मुझसे दूर रहा करें आप। वो गुस्से से बोली तो वो कपड़े चेंज करता बाहर निकला तो वो सोफे पर टांगे फैलाए बैठी थी। अरे यार, क्या तुम्हारे अंदर अक्ल है कि नहीं? मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। इसके पास आकर चिढ़कर बोला। हाँ तो ये भी तो आपने किया है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे भी गंदगी से बहुत चिढ़ है, लेकिन आप मुझे चिढ़ाते ना। अब आपके चिढ़ने की बारी है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोलती हुई सोफे पर लेट गई। फ़ौरन उठो और जाकर कपड़े तब्दील करो। वो इसे बाजू से खींच कर खड़ा कर गया। आपके लिए ये सोफ़ा मुझसे ज़्यादा कीमती है क्या? इसने ज़ोमनी अंदाज में पूछा तो वो चौंक कर इसे देखने लगा।
मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस बात ही नहीं की। मुझे गंदगी से चिढ़ है, वो जला कर बोला। अरे यार, मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? वैसे मैंने ऐसे ही कहा था। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है और आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो जल्दी से बोली। अगर मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में तो फिर किसकी अहमियत है? ज़रा इसका भी मुझे नाम बता दो। वो तजस्सुस भरे लहजे में बोला तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। वक़्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप भी फ़िलहाल एंजॉय कीजिए, शादी होने वाली है। दोबारा से अपने वालिदैन के साथ जाकर बात करें और अपनी शादी के फंक्शन एंजॉय करें। और रही मैं, जब वक़्त आएगा आपने अपने बारे में आपको सब बता दूंगी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोलती इसकी साइड से गुजरने लगी तो इसने इसका हाथ थामकर अपने सामने कर लिया। क्या वाकई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है जो तुम्हारे सुकून का बाहिस है? मूसा शाह ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, मगर मैं एक सुकून की तलाश में हूँ जिसे मौत कहते हैं। वो शायद मुस्कुराहट से बोली। फजूल बोलने की आदत है तुम्हें, इंतहाई बदतमीज़ हो। खबरदार, आइंदा तुमने खुद को मरने की बात भी की। वो बेख्याली से इसे खींच कर अपने सीने से लगाते हुए बोला तो वह साख्त रह गई। मोहब्बत होने लगी आपको मिस्टर शाह? अपने कदमों को रोक लीजिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह गिर जाएंगे आप, क्योंकि मैं आपकी दस्तरस से बहुत दूर जाने वाली हूँ। कहीं मेरे दूर जाने के बाद आपके लिए मेरी जुदाई सहना मुश्किल ना हो जाए। वो इसके कंधों से लगी इसके कान के करीब बोली तो मूसा ने लब भींच लिए। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तुम्हारा ये गुरूर और तकब्बर मुझे इंतहाई परेशान करता है। यार, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और मैं ये करवा कर रहूँगा। तुम खुद मुझसे आकर इकरार करोगी कि प्लीज़ नवीरा से शादी मत कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मगर मैं तुम्हारे रोने पीटने पर कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसे करती हो ना तुम भी, मैं भी ऐसा ही करूँगा तुम्हारे साथ। मेरी ज़ात का सुकून इसी चीज़ में है कि मैं तुम्हें रोते गिड़गिड़ाते देखूँ। वो इसे एक झटके से छोड़ते हुए बोला। वो हल्की सी मुस्कुराहट से इसे देखने लगी, जिसकी आंखें कुछ और लब कुछ और कह रही थी। इसकी आंखों का मफ़हूम जानकर मज़ीद गड़बड़ा गया और इसे पीछे की तरफ धकेलता हुआ गुस्से से वार्डरोब की जानिब बढ़ा और कपड़े निकाल कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। फिर वो हर दिन इसके जवाब का मुंतज़िर रहा, लेकिन वो इसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो हर रोज़ कहीं बाहर जाती, फिर इसी आदमी के साथ वापस आती। इसकी हरकत पर एक दिन अनदेखी बेचैनी हो रही थी। आज इसकी मेहंदी थी। इसने न जाने अपने बेटे को क्या सिखाया था कि वो अपने बाप की दूसरी शादी पर खुश हो रहा था और कहता था कि इसकी दो माएँ होंगी। आज मेहंदी के साथ इसका निकाह था और कल बारात लेकर जाना था। इसका निकाह शुरू होने ही वाला था कि इसके दिल को घबराहट से होने लगी। वो उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ, किधर जा रहे हो? नवीरा ने पूछा। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल खाली हो चुका है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो पागलों की तरह बोला तो नवीरा ने नम आंखों से देखा। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? अरे मेरी बेटी, क्या कोई तमाशा है? जब चाहो तुम इसे छोड़ दो और जब चाहो अपना लो। नवीरा की माँ गुस्से से बोली। जब ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरे बेटे की ज़िंदगी के साथ खेल रही है, खुद न जाने किसके साथ चक्कर है। रोज़ इस मर्द के साथ आती जाती है, इसकी ज़िंदगी से भी जाने वाली है। मगर मेरे बेटे को अपने पीछे पागल किया है, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। उज़्मा शाह ने कपकपाते लहजे में कहा। फिर अंदर की जानब बढ़ गई। वो तेज़ी से इनके पीछे लपका और इन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, मगर इनके सर पर तो जैसे जुनून तारी था। वो सब इसके पीछे पीछे अंदर चले आए। जैसे ही उज़्मा शाह ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला तो आगे का मंजर देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो ज़मीन पर दोहरी हुई थी, इसकी नाक और मुंह से खून जारी था। मूसा शाह तड़प कर इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ जहरीला खाया? क्या तुमने खुदकशी करने की कोशिश की है? वो इसके कंधों से जकड़ते हुए चीख कर बोला। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती वही लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो सब चौंके। प्लीज़ इसे लिटा दो, वो जल्दी से बोला तो मूसा ने जल्दी से इसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं डॉक्टर हूँ, इनको 1 मिनट मुझे इंजेक्शन लगाने दीजिए। इसने कहते हुए जल्दी से इंजेक्शन भरा और इसके बाजू में इंजेक्ट कर दिया, मगर इसकी दर्द से चीखें निकल रही थी। मूसा ने सर उठाकर देखा तो वो डॉक्टर की आंखों में आंसू देखकर साख्त रह गया। क्या हुआ, बताइए मुझे। इसकी ये हालत और इसके मुंह से नाक से खून क्यों निकल रहा है? इसने कोई जहरीली चीज़ खाई है क्या? इसने तड़प कर पूछा। नहीं मिस्टर शाह, इसके अंदर खून का इतना जहर है कि इसे जहर खाने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में सिर्फ इसकी कुछ दर्द की तकलीफ़ दूर करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इसे हर तकलीफ़ से निजात दे। वो दरद से तड़पती रायना को देखकर बोला। कहना क्या चाहते हैं आप? उज़्मा शाह ने पूछा। नहीं, इन्हें आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने कहा। तो मूसा ने बेयकीनी से इसे देखा, फिर अपने बाल मुट्ठी में जकड़कर तड़प तड़प कर रो दिया। फिर एकदम से उठा, इसके पास बैठते इसे देखने लगा, क्योंकि आंखें मूंदे लेटी हुई थी। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे गले लगा गया। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझे क्यों नहीं बताया? काश तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा? वो रोते हुए बोला। मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, वरना ज़िंदगी भर रोएंगे। मैंने आज अपना इंतकाम ले लिया तुमसे मूसा शाह, ऐसा इंतकाम जिसका गुनाह भी नहीं। बस तुम्हें एक दर्द और तकलीफ़ महसूस होगी जिसको 7 बरसों से मैंने महसूस किया।
तुम्हें ज़िंदगी भर ये तकलीफ़ याद रहेगी। जब अपना मर जाता तो कितनी तकलीफ़ होती है। मेरे इंतकाम से तुम्हारी ज़िंदगी में बेरौनकी आ गई। मोहब्बत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं होता। मोहब्बत मर जाए तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। इसके गले लगे वह मुश्किल बो रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तड़प उठा। मैं कर दूंगी माफ़, लेकिन एक काम करना, मेरी मियत को मेरे मोहल्ले ले जाना। एक बार सबके सामने कह देना कि राना ने अपने बाप का मान नहीं तोड़ा, ताकि आज तक जो लोग कहते कि महराज ने अपनी बेटियों को कॉलेज भेजा और इसकी बेटी किसी के साथ मुंह काला करके इसे मार गई, वो इल्ज़ाम मिट जाए। अब मुझसे मज़ीद बोला नहीं जा रहा। वो बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई। तो मूसा ने इसे सीधा किया तो इसकी स्याह आंखों में ज़िंदगी की चमक ख़त्म हो चुकी थी। इसे सीने से भींचते हुए तड़प तड़प कर रो दिया। इसने अपने आप को संभाला। इसकी मियत को इसके मोहल्ले लेकर आए। जब मस्जिद में ऐलान हुआ तो सब लोग इसे देखने आने लगे। इसकी बहनों के आने के बाद इसने राफे को नवीरा के साथ अंदर भेजा। अपना इकरार जुर्म किया तो इसकी बहनें तड़प तड़प कर रो पड़ी। हर आंखें नम थी। वो लोग जो कल तक इस पर तोहमत लगा रहे थे, इसकी तारीफ़ों के पल बांध रहे थे। जब इसका जनाजा उठाया, इसे कब्र में उतारा तो इसे महसूस हुआ कि अपनों की लाश बड़ी भारी होती है। वो अपना मुर्दा दिल भी इसके साथ दफन कर चुका था। इसके दिल की मसनद पर वो बुर्जुमान थी जिसे वो कभी नफरत करता था। अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके इससे बहुत बड़ा इंतकाम लेकर गई। घर आकर इसने ख़त खोला और सबके सामने ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। मूसा शाह, जब आप ये ख़त पढ़ेंगे तो मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि औरत के माँ बाप का सर जिस वजह से झुके वो इसे कभी दिल में नहीं बसा सकती। मेरे राफे को कभी अपने जैसा मत बताना। इसे बताना कि इंतकाम घर उजाड़ देते हैं। इसके अंदर मैंने कभी